मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं मुबशर सलामत गुलाम मसीह। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावन, एक बार फिर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये मौका दिया है और तेरे पाकरू को मांगते हैं उसी के खुदावंदा साया में तेरे कलाम को खोलते, पढ़ते, सुनते और सीखते हैं। हमारी मदद कर, तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के लिए कितनी कीमती है, या रूहानी ज़िंदगी और जिस्मानी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, और पहली मौत और दूसरी मौत क्या चीज़ है। हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। मुकाशफा उसका 20वां बाब 14वीं और 15वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर मौत और आलम अरवा और आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। यहाँ इस हवाला में दूसरी मौत का जिक्र है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली मौत भी है। तो हम पहले पहली मौत का जिक्र करते हैं, बल्कि दो मौतों का दूसरी मौत का जो जिक्र है और पहली मौत का जो जिक्र है, वहाँ मैं आपके सामने बयान किए जाता हूँ कि पहली मौत रूहानी मौत है और दूसरी मौत जिस्मानी मौत है, जिसे तबाही मौत कहते हैं। तो हम पहले रूहानी मौत को देखते हैं कि रूहानी मौत का या पहली मौत का क्या मतलब है। पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। यहाँ पर खुदा बाप आदम को तंबीह करते हैं कि एक ऐसा दरख्त है कि जिसको खाओगे तो उस वक्त खाने के फौरन बाद मर जाओ। यहाँ पर जो मौत का जिक्र है, जो खुदावंद मौत का जिक्र करते हैं कि तुम खाओगे और मर जाओगे, वो रूहानी मौत है। रूहानी मौत का मतलब कि ज़िंदा खुदा बाप की कुर्बत से दूरी, क्योंकि खुदा बाप ठंडे वक्तों में आकर आदम और हव्वा से बातें किया करता था, लेकिन जब हव्वा ने और आदम ने इस फल को खाया तो उन्होंने अपने आप को नंगा महसूस किया। ये जो नंगापन है, यही उनकी मौत है, यही उनकी दूरी है, जुदाई है खुदा से। तो जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है, ये गुनाह उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी की सूरत में आया। नाफरमानी उन्होंने
خدا کے حکم عدولی کرتے ہوئے یہ کی، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں منع کیا، متنبہ کیا کہ یہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے پھل مت کھانا، جس روز کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ تو انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی اور حوا نے اس میں سے لیا، کھایا اور اپنے شوہر کو دیا، اور دونوں گنہگار ٹھہرے۔ اور جب دونوں گنہگار ٹھہرے تو دونوں روحانی موت کے مرتکب ہوئے۔ یوں اس حکم عدولی نے گناہ کو جنم دیا، اور یہ گناہ آج ہر انسان کی زندگی میں موجود ہے، اور جب تک یہ گناہ انسان کی زندگی میں موجود ہے وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جب انسان موت کی حالت میں رہتا ہے تو خدا سے جدا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس روحانی موت سے بچنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ رکھتے ہوں، ہم موت کی حالت میں چلتے پھرتے ہیں، اسی طرح کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ وہاں پر وہ لوگ تھے جو روحانی طور پر مردہ تھے، اور ایک مردہ وہ تھا جو طبعی طور پر مر چکا تھا۔ ہم دوسری موت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسری موت کا ذکر کریں، موت کا مطلب ہے کہ انتقال کرنا، مرگ، قضا، اجل، وفات، دم نکلنا، چل بسنا۔ اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے جگہ بدلنا، رحلت کرنا، موت آ جانا یا فوت ہونا۔ تو جب ہم جسمانی طور پر مرتے ہیں تو ہمیں قبرستان لے جایا جاتا ہے اور مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ طبعی موت ہے۔ ہم طبعی موت کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، جسمانی موت یا طبعی موت، فطرتی موت، قدرتی موت، جسم کا فنا ہونا، وہ جسم جسے موت کے بعد مٹی میں دبا دیا جائے۔ اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے مکاشفہ 20واں باب 10ویں آیت۔ اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اگر ہم عذاب سے اور آگ اور گندک کی جھیل سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی، نئی پیدائش یا نئی زندگی حاصل کرنا ہوگی۔ نئی پیدائش کا مطلب ہے یا نئی زندگی حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو چھوڑیں، ہم اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ دے دیں اور معافی مانگیں کہ خداوند مجھ گناہ گار پر رحم کر، تو وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کرے گا، تو ہم نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ہم نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارے وہ روحانی موت، اس سے ہم چھوٹ جائیں گے، لیکن طبعی موت ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو ایک بہت آسان اور سیدھا سا فارمولہ آپ کی زندگی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ فارمولہ آپ
अपने ऊपर तारी करें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। अब जो जुमले बोलने लगा हूँ उनको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जो इंसान एक दफ़ा पैदा होता है वो 2 दफ़ा मरता है। फिर दोहराई देता हूँ, जो इंसान एक दफ़ा पैदा होता है वो 2 दफ़ा मरता है। एक दफ़ा पैदा होने से 2 दफ़ा कैसे मरता है कि एक तो उसकी ज़िंदगी जब गुनाह आलूदा होती है तो वो रूहानी तौर पर मुर्दा है, और वो तबई मौत जो कुदरती मौत है वो उसकी ज़िंदगी में साथ साथ है। नंबर 2, जो 2 दफ़ा पैदा होता है वो 1 दफ़ा मरता है। जो 2 दफ़ा पैदा होता है वो 1 दफ़ा मरता है। तो आए मेरे अजीज़ों, हम दूसरी दफ़ा पैदा हों, हम दूसरी पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह से हासिल करें, और दूसरी पैदाइश हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को अपने खुदावंद यीशु मसीह के हवाला कर देंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। ऐ मेरे अजीज़ों, हम अपनी सारी नाफरमानी, चोरी चकारी, नशाबाजी या दंगा फसाद, हत्ता के हर तरह का गुनाह अगर हम छोड़ दें तो हम दूसरी पैदाइश हासिल कर लेंगे। जब हम दूसरी पैदाइश हासिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक मौत रह जाएगी, और वो हमारी मौत है जो तबई मौत है। क्योंकि दूसरी मौत और जो हमने लिखा पढ़ा आग और गंधक की जेल, वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए है। तो मेरे अजीज़ों, आज आपसे दरख्वास्त है कि जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए आग है, हम आज उससे बचें, बचने की कोशिश करें। और वो कोशिश सही इसी तरह है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हम निजात पाएँ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया कि हम निजात पाएँ और हम उसके करीब रहें, ताकि जो आग और गंधक की झील है हम उसमें जलाए ना जाएं, हम उसमें डाले ना जाएं, बल्कि हम इस दूसरी मौत से बच जाएं। ऐ मेरे अजीज़ों, आइए हम दूसरा आज जन्म लें, और दूसरा जन्म लेने के बाद हमारे ऊपर सिर्फ तबाही मौत का एक असर होगा, रूहानी मौत से हम बच जाएंगे। और ये कलाम हमारे लिए आज हासिल कलाम ये देता है कि हम नई ज़िंदगी हासिल करें, हम नई पैदाइश हासिल करें, हम 2 दफ़ा पैदा हो जाएं और 1 दफ़ा मरें। अगर हम दो मौतें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में एक ही पैदाइश है, और जो एक पैदाइश है वो हमारे लिए आग और गंधक की तैयारी की ज़िंदगी है। हम इस आग और गंधक की ज़िंदगी से बचें, हम इस अज़ाब से बचने के लिए अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद के कलाम पर और खुदावंद यीशु पर मसीह पर ईमान रखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।